Hello, everybody. My name is Surbhi Singh and I'm a cabin attendant. Welcome to my YouTube channel. So, it's so good to say this because literally I was planning to say this from last 3 years when I was planning to become a cabin crew and I was searching for information here and there. So, I know the struggle, how it is. All those topics like how to become a cabin crew, how to prepare for your interview, how to go for your interview, how to search for your interview, what we should follow, what not to follow, everything. If I am forgetting any point, if any points which I'm not covering over here, please do let me know in the comment section so that I will cover all those topics. So without any further ado, let's get started. Okay, so the first and more foremost thing we have to look is where are the interviews and how we will get to know. Just start with the start, okay? So it's good for you if you are already aware about it. So, but still, there will be something in this video for you that will help you for sure. And for those who are totally new aspirants, like they are not aware, they are clueless, for them, so of course, I'm here and I will tell everything. Okay, so first we will search like where are the interviews. So we have to do simply go on the Google, search indigo.careers. Particularly I'm telling you about the Indigo, but if you want to go for any other airline, it's the same process. Okay, first of all I would suggest you to go for एवरी एयरलाइन इंटरव्यू. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इसी इंडिगो के लिए ही जाओ या कासा के लिए ही जाओ. जस्ट गो फॉर any airline interview, any cabin crew interview, because it will help you to boost your confidence and it will help you personally. आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है? आप जहाँ पे लैग कर रहे हो, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट एंड यू विल गेट टू नो तभी जब आप उस चीज़ को फेस करोगे. बिकॉज सिटिंग एट होम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज will not help you at all. You have to face the interview, you have to do your homework and go for the interview. Then you will get to know that where are you lacking so that you can work and go back, right? I will show it to you over here, like how you have to search. Like I'm putting indigo.careers. आपको करियर का पेज खुल जाएगा. Here is the interface, ठीक है? इस इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा करियर्स का, जहाँ पे आपको जॉब का दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या होता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं. सो थिंग इज़, ये जो गाइडलाइंस है ये आपको हर एयरलाइन की अलग अलग होती है. थोड़ी बहुत मतलब सिमिलर होती है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स आपके डिफरेंट होते हैं उनके कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो चीज़ तो आपको यहाँ रिटर्न में मिल जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी दे सकता है. हमें बात करनी है, हमें काम करना है उन पॉइंट्स पे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और आपके इंटरव्यूज़ में वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. यू नेवर नो. आपको पता भी नहीं लगता वो कब आपकी चीज़ों को, कहते हैं ना, आपको कैसे जज कर रहे हैं, किन चीज़ों पे वो नोटिस कर रहे हैं. कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी. तो हम उन सब पे भी काम करने वाले हैं. एंड प्लस दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद उस पर स्टार्ट वर्किंग. ओके, सो नाउ वी नो कि इंटरव्यूज़ के लिए कैसे जाना है, ठीक है? इंटरव्यूज़ कहाँ पर है, किस स्टेट पे है. नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज़ द की. कॉन्फिडेंस, इवन इफ यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर, जस्ट गिव इट विद द कॉन्फिडेंस. आई एम नॉट सेइंग कि बात हो रही है किसी और चीज़ की, आप उसमें कुछ और अपना डिस्कस करने लग जाओ या कुछ और बोलने लग जाओ. आई एम जस्ट सेइंग कि इवन इफ यू आर डूइंग मिस्टेक्स, इवन यू आर डूइंग ग्रामर मिस्टेक्स, whatever it is, just be confident, because sometimes you never know कि वो नोटिस हुआ भी है कि नहीं, बट हम उस चीज़ को इतना फील कर लेते हैं कि वो गलती हो गई और उस एक गलती के बाद हम कंटिन्यूसली और गलतियाँ करने लगते हैं. सो वो चीज़ नोटिस हो जाती है. सो एज अ प्रो टिप, डोंट हेजिटेट टू शेयर योर नॉलेज एंड योर आंसर. जो जस्ट डोंट थिंक ट्वाइस, ठीक है? आपके दिमाग में जो आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू जज ऑन योर आंसर्स, बेसिस ऑफ योर आंसर्स. दे आर जस्ट गोइंग टू चेक योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? डजेंट मैटर आपका ओपिनियन क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, और उस बेसिस पे वो जज नहीं करने वाले कि वो आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो. नो, डजेंट मैटर फॉर देम. उनको बस दिखना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क ऑन यू. ओके, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी,
how you have to deal with the customers, how you have to present yourself, poise, groom, and everything about safety procedures, about um, customer service, everything they are going to teach you, tell you, and taking the exams. तभी वो आपको रिलीज़ करेंगे आगे जॉब करने के लिए, ठीक है? वो ट्रेनिंग पीरियड का काम है, उसकी टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है प्लीज़। अभी आपको सिर्फ वर्क करना है अपने ऊपर, सो दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड। बाकी का काम हम बाद में कर लेंगे, है ना? तो अभी के लिए आपको जस्ट कॉन्फिडेंट होके अपना आंसर देना है विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। सबसे पहली चीज़ जो आपकी आती है वो आपका लुक, ठीक है? हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, बिकॉज आपके मुंह खोलने से पहले ना आपको लोग देखते हैं, ठीक है? फॉरगेट अबाउट इंटरव्यूअर। आप जब अंदर एंटर करते हो वेन्यू के अंदर, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर, एंड आप वहीं पे अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे अगर आपकी ग्रूमिंग ठीक नहीं है, ठीक है? तो आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, ठीक है? क्योंकि सब ऑलरेडी ग्रूम होके आए हुए होंगे, और उसमें अगर आपको अपने अंदर कमी लगेगी ना, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना किसको बुरा लगता है? इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट, आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक a video on that grooming, like how you have to make the bun and everything. I will cover that part also. But yeah, you have to work on your hair, on your eyes, on your skin, on your overall look, on your attire. It should be look professional. I have seen people जिनके बाल short हैं और they think short hair is nice, but hair is nice of course, and it's very easy to do the hairdo and all, but the thing is आपको यहाँ तक रखनी है, ठीक है? But I don't know other airlines if they are taking आपका यहाँ तक का length. If I talk about Indigo, it's still here. It should not touch your shoulder. It's like really really important, which nobody will tell you, but that will make high chances to get selected, because of course आपका communication skill and everything will count, but उसके साथ overall वो आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ नोट डाउन होके होता है. If you have a long hair, I would suggest you to do the bun. Of course, everybody knows, I guess. So I have to do the bun and donut. You with the donut you can make if you have short hair. If you have a long hair like me, so I would suggest you to do a braid. First, do a braid, one single braid, and you can make the bun of it. It will look very elegant. Don't forget to put hair net, of course. It will look very neat and clean. So this was regarding grooming. I can make another video regarding it, otherwise the video will get very longer. And next step is your personality. So how you're representing your personality when you will enter at the venue, greet everybody. आपको पता नहीं है, बट ये चीज़ें नोटिस होती हैं, और अंदर से भी जो HR या जो भी अंदर बैठे हुए हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, दे कैन नोटिस यू. आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बात कर रहे हो दूसरों से, कैसे बिहेव कर रहे हो, और कैसे आपको अगर क्यू में खड़ा किया गया है तो आप वहाँ कैसे खड़े हो. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो आपको हर टाइम पॉइज में रहना है, एंड पॉइज का मतलब ही यही होता है, ठीक है? यू आर नॉट स्टैंडिंग लाइक ऐसे ऐसे, you know that you have to like stand in poise, straight body, okay? And even if you are sitting, panel बैठा होता है उनके सामने, like how you're walking, how you are entering, and how you're grabbing your seat. Just look at once at the seat, फेस द इंटरव्यूअर, बिकॉज यू नो कहाँ पर सीट है. एक बार आपने देख लिया, ठीक है, कहाँ पर आपकी सीट है. फेस द इंटरव्यूअर, ग्रैब द चेयर, स्माइल, सिट विद द पॉइज एंड ग्रैब द सीट, ओके? अब आपको पूरा ऐसे चेयर पे आके पीछे ऐसे नहीं बैठ जाना है, आपको हाफ सीट ऐसे लेके आगे ऐसे बैठना है, अटेंटिव लगने के लिए. बिकॉज अगर आप पूरा रिलैक्स होकर बैठ जाओगे तो उनको लगेगा डिसइंटरेस्टेड, राइट? आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लेजी मूड में आए हो, ठीक है? बट यू आर here for interview, so you have to show them that you're very keen and you're very determined. बाद हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर बात करें, तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको ऑफ कोर्स अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, पहले से ही करना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू, डू योर होमवर्क नाइसली, because they are here to just check the grammar and everything, because as I told you earlier that
they are not going to judge about knowledge and this thing, because you are a fresher, you have just passed 12th, and you are here for the interview. So you should knowing about the company. Of course, it is really really important that for which airline you are going, you should be aware that who is the CEO and who's like at what post, like basic things like, ठीक है, थोड़ा बहुत knowledge आप गूगल से वो चीज़ें लेके जा सकते हो. They just want a candidate who is a keen and determined for the work, and who is ready to relocate at any location. Well, they might will ask you at the time of interview that are you willing to relocate. Like in my case, as I'm a single child of my parents, so when they got to know that I'm a single child, they just asked me that then your parents will be ready to that if you are relocating at any other city, are you comfortable. So it's because उनके मन में एक ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको आगे प्रोसेस करें, फिर आगे जाके इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ये बैक आउट कर दें, राइट. तो वो चीज़ें भी हैं. दे माइट विल डिस्कस दिस थिंग विद यू. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड से येस, because if you are applying for a cabin crew interview, you should be aware that this is going to happen. Base आपको अलग मिल सकता है. I was Bombay based earlier and now I'm in Delhi, so of course उस टाइम के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, and then you can come back to your city. आप ट्रांसफ़र के लिए डाल सकते हो, ठीक है, तो आप ट्रांसफ़र लेके वापस आ सकते हो, बट फॉर दैट टाइम यू हैव टू गो, ठीक है. एंड ये जॉब ऐसी ही है बिकॉज यू शुड बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर एवरी चेंजेस. एंड आई विल टेल यू इसके बारे में भी पूरा डेप्थ में जाके. यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में रह के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. एंड इट्स अ गुड थिंग, ठीक है. आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं दैट यू विल लव इट एंड यू विल बी थैंकफुल फॉर दैट थिंग, दैट थैंक गॉड आई टुक दैट डिसीजन, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट again I am saying, just be confident about your answers, say yes. And you have to be very careful, like while answering, don't make faces and rolling your eyes and this thing, because I am talking to you casually normally, so even I am doing this thing, and we don't feel that thing, but we usually do this, okay. And in my case, I have this thing, okay, so I controlled a lot, because when I'm giving answer professionally, I have to take care of it, and if you have a same problem, you have to take care of it, because ऐसे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, I can do anything, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. It's not a problem, okay, but professionally it doesn't look good, because you never know, the other person will think that you are making these faces because you are not interested to give that answer, or anything could they can think, right. तो आपको वो चीज़ें अज्यूम नहीं करने देनी है, आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देना है. and you have to take care of your facial expressions, so you don't have to do this and that. I say don't sit like this, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, and you are good to go. That's it. आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, and आप रेडी हो इंटरव्यू देने के लिए. अब ये आपका सॉर्टेड हो गया है, ठीक है. द थिंग्स यू हैव टू कैरी विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. अगर मैं ये सारी चीज़ें बाद में रख के, अगर आपको सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँगी ना, तो डॉक्यूमेंट्स. Be careful about your documents, carry each and everything, original, hard copies, everything carry with you. Just be careful, but उसका ध्यान रखना, ये नहीं कि गुम करके आ जाओ, ठीक है. So I have seen people जो बाद में बहुत रोते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है यार, कहाँ पे रख दिया, बिकॉज आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही है इंटरव्यू को लेके, और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, उस टाइम पे लास्ट मिनट में. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स एंड डू कैरी विद यू, ओके. फर्स्ट थिंग, आप इफ़ आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैंने इंटरव्यूज़ जब मैं देने जाती थी, तो एक बार की बात है, आई वेंट फॉर द गोयर इंटरव्यू, आई गेस, या गोयर इंटरव्यू. after standing in a queue like for good 2 hours, more than 2 hours exactly, I don't know exactly, but it was more than 2 hours, but ठीक है.
लाइन में खड़े होने के बाद दे केम एंड दे सॉ कि बहुत ज़्यादा रश हो गया है एंड दे स्टार्टेड ट्रैकिंग ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग विदाउट टेकिंग इंटरव्यू, लाइक हाइट वेट चेक, ऐसा उनमें प्रोसीजर एक होता था कि पहला जो राउंड होता था हाइट एंड वेट का चेक होता था, ठीक है। एंड वो भी नहीं हुआ उस दिन। सबसे पहले उन्होंने बस डॉक्यूमेंट्स का पूछा। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास, आई वॉज नॉट कैरिंग पासपोर्ट, सो आई डिडंट हैव पासपोर्ट एट दैट टाइम, ठीक है। मैं ऐसे ही चली गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो पासपोर्ट अगर नहीं है, गो बैक, अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड कम बैक, ओके। देन मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू में आना। और कुछ लोगों के स्किन में प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, तो दे सेड कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड take the appointment for the dermatologist and मतलब look after your face and then come back for the interview। ऐसे करके उन्होंने भीड़ कम की है लिटरली। इसलिए आई वुड सजेस्ट अप्लाई फॉर द पासपोर्ट इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ मुझे इसमें जाना ही है एंड ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अच्छा है ना आपको अप्लाई करने के लिए, क्या आपका कुछ लॉस तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड इट डजंट मीन कि इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट यू कैंट गो फॉर द इंटरव्यू। प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू बिकॉज ऐसा इंडिगो में तो मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है बिकॉज दे विल गिव यू टाइम, एनी एयरलाइन विल गिव यू टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर सिचुएशंस अलग होती हैं, हर बार रश अलग होता है, तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो भी अलग होता है। सो दे टुक दैट डिसीजन एट दैट डे, इट डजंट मीन कि वो दोबारा होगा। बट फॉर द सेफर साइड आई एम टेलिंग टू यू, आपको करना ही है, कुछ टाइम बाद करना है, सो वाई नॉट अभी, ठीक है। तो अभी अप्लाई कर लो पासपोर्ट के लिए, बेटर है। अगर नहीं भी किया है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू, गिव योर इंटरव्यू, दे विल गिव यू टाइम बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है and whatever the documents they will ask you can give it that time and rest of for the rest of it they will give you time, you can apply for the passport। जो आपको स्लिप मिलेगा उसके बेसिस पे भी आप उनको बोल सकते हो, या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लिया है एंड यू हैव दैट स्लिप कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, आने वाला है, वो भी आप लेके जाना, वो भी आप उनको दे सकते हो, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो वर्क। and passport size photograph, your resume, make a good resume and mention each and everything. If you are experienced crew, you already know that you have to mention everything and there in your resume. And if you're a totally fresher, you don't have any experience, mention your qualifications, no worries, okay. If you want me to cover any other point, please do let me know. I would more than happy to share my experience and my knowledge with you all. That's why I'm here. And yeah, that's all for today, and I hope I will come back with another informative video again. If you do like, if you really like this video, please do like, comment and share, subscribe my channel, press the bell icon because I want you all to be notified, आपको पता लगे कि मैं नेक्स्ट क्या लेके आ रही हूँ, मैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल so that मेरे को भी मोटिवेशन आएगा, आई कैन मेक मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस। थैंक यू, बाय।